I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in mind at all time the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Dear students, good morning to all of you. Today we will start our grammar topic, chapter number 2, pronouns. You all know we already discussed about and you already learned some of these in earlier classes. What are the pronouns? The words that you filled in are different kind of pronouns. तो different kinds of pronouns क्या होते हैं, कौन कौन से हैं? 9 kinds दी गई हैं हमें. पर्सनल pronouns, demonstrative pronouns, possessive pronouns, indefinite pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronouns, emphatic pronouns and relative pronouns. हम सब ने इसके बारे में डिस्कस किया था हमारी लास्ट असाइनमेंट में. तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होता है इसमें? आई. सेकंड क्या होता है? वो है, जो कि सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट में क्या होता है? मी एंड आस. सिंगुलर एंड प्लूरल सेम. सेकंड पर्सन यू एंड प्लूरल इसमें यू ही रहेगा. सिंगुलर यू एंड प्लूरल ऑल्सो यू. थर्ड पर्सन ही शी इट एंड प्लूरल में दे में कन्वर्ट हो जाएगा. हिम हर इट ये कन्वर्ट हो जाएगा दैम में. यूज़ ऑफ इट. इट कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग्स और एन एनिमल्स. इट कहाँ पे यूज़ होता है? थिंग्स और एन एनिमल्स के लिए. फॉर अ स्मॉल चाइल्ड के लिए, स्मॉल चाइल्ड के लिए. फॉर पीपल इन अ फ्यू केसेस, कुछ केसेस में पीपल्स के लिए भी यूज़ होता है. टू एक्सप्रेस टाइम, डिस्टेंस, वेदर एक्सेट्रा. For example, it's the 5 o'clock, it's a cold today, it's the 500 kilometer, it's the 4th of July, how far is it? It's Lucknow, it's take 5 hours to reach Jaipur, like that. It to introduce sentences. Sometimes कहाँ पे use होता है? it introduce करने के लिए किसी sentence को. To represent something already mentioned. जो चीज़ पहले mention है उसको represent करने के लिए भी it use होता है. He is always on time and I like it. तो मुझे ये पसंद है. सेम नेक्स्ट हमारा क्या है? यूज़ दे, देम एंड देयर. कहाँ पे होता है? देयर प्रोनाउंस दे एंड देम कैन बी यूज्ड विद नाइदर, आइदर, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन. तो कहाँ पे यूज़ होता है? नाइदर के साथ, आइदर के साथ, नो वन के साथ, समवन, एनीवन एंड एवरीवन. हु हैज़ लेफ्ट देयर बैग्स on the seat. Neither of them has completed their work. Everyone can be present. Can they? Can't they? Who plus their, neither of them, everyone and they. Next हमारा demonstrative pronouns. They have to point out at something or someone. जो किसी को point out करने के लिए होता है वो कुछ भी हो सकता है. हमारा समथिंग भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है. पोसेसिव प्रोनाउंस एंड पोसेसिव एडजेक्टिव्स वो क्या होते हैं हमारे? दे हेल्प टू शो पोसेशन, जो हमें पोसेशन शो करते हैं. दिस पेन इज माइन. माइन मीन्स ये हमारा पोसेसिव हो गया. योर पेन ये भी पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया. शूज़ आर हेयर्स पोसेसिव प्रोनाउंस. दिस इज अवर हाउस possessive adjectives. That problem is theirs possessive pronouns. Interrogative pronouns. The pronouns who, what, which, whom are used to ask question. जो interrogation के लिए किए जाते हैं किसके साथ होते हैं स्टार्ट? WH के साथ. What, who, which and whom के साथ स्टार्ट होते हैं. वो हमारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. व्हेन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ प्लूरल. यहाँ सेल्फ है, ये सेल्फ्स है, ये प्लूरल में है. हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ a verb and when the objects and the objects are the same person or animal. The pronouns are called reflexive pronouns. कौन कौन से? myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself and themselves are used to object of our verbs, and when the subject and the object are the same person or animal उनके लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है हमारे?
कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशंस के बाद भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? व्हेन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ आर यूज टू एम्फेसिस अ नाउन और pronoun. These self pronouns are called emphasing. जो self pronouns होते हैं हमें उसे हम बोलते हैं emphasis pronouns. For example, I myself can do it और I can do it myself. यहाँ पे I भी आ गया और myself भी आ गया, जो अपने लिए होते हैं self pronouns होते हैं, उसको बोलते हैं हम emphatics. Reciprocal pronouns. These pronouns are used to show the एन एक्शन और अ फीलिंग, जो क्या करते हैं एक्शन और फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटेड प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारा इंडेफिनेटिव प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नोवन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग. These pronouns do not refer to any specific person, things or amount. For example, everybody enjoyed the puppet show. There was no one in the building when the fire broke out. हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं? person, for things, subject, object and possessive. सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? who, whom, who, whose, और सब्जेक्ट which, whose. ठीक है, that and that. यूज कैसे होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन इंट्रोड्यूस टू रिलेटिव क्लाउजेस. रिलेटिव क्लाउजेस गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन दे क्वालिफाई. दे आर ऑफ टू काइंड, डिफाइनिंग रिलेटिव्स एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव. डिफाइनिंग रिलेटिव्स क्लाउज क्या होते हैं? एड डिटेल्स अबाउट अ स्पेसिफिक नाउन, जो कि एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में हमें डिटेल देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग relative clauses. और नेक्स्ट हमारा नॉन defining relative clauses tell us more about someone or something, but the information in these clauses does not help us to define what or who we are talking about. इसमें someone और something के बारे में टॉक तो होती है, बट ये डिफाइन नहीं करते कि इसमें किसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, let's start the back exercise. Fill in the blank self pronouns and tell whether they are reflexive or emphatic pronoun. She will come to you. Herself हमारा emphasis, myself emphasis, ourself reflexive, yourself reflexive, himself reflexive and yourself reflexive. Next हमारा there are spelling themselves reflexive. I love myself more than anyone else reflexive. She cannot express herself reflexive. He can do everything himself emphasis. Next, read the following sentences and tell whether the relative clause used in each is defining or a non-defining relative clause. हमारे क्या बताना है? हमने defining and non-defining clauses बताने हैं. The story which I heard from her was published in all the dailies. तो क्या है हमारा? डिफाइनिंग प्रोनाउंस है, क्योंकि उसने क्या बताया? द स्टोरी विच आई हर्ड फ्रॉम हर वॉज पब्लिश्ड इन ऑल डायरीज. माई टेलीविजन विच वॉज इन द फार कॉर्नर ऑफ द रूम टॉपल्ड ओवर. ये हमारा क्या है? नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि उसने कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया. द अटैकर हु थ्रेटन मी विद अ गन वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. दिस इज ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि इसमें भी पूरा सेंटेंस इन्फॉर्मेशन तो दी गई है, बट टॉक किसके बारे में की गई है ये नहीं पता. द बॉल विच आई थ्रू वॉज कॉट बाय माई डॉग. ये हमारा क्या है? नॉन डिफाइनिंग. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बारे में बात तो की गई है, बट इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये डिफाइन नहीं किया गया कि किसके बारे में टॉक कर रहे हैं. द चिल्ड्रन हु कुड रीड द स्टोरी एंड राइट देयर नेम वर एडमिटेड टू द स्कूल. दैट इज डिफाइनिंग, क्योंकि द चिल्ड्रन who could read the story and write their name were admitted to the school. The car which rammed into a truck last night was completely smashed. This is a non-defining. The keys which are hanging on a string are yours. ये किसी के बारे में बात की गई है तो उसके पूछा गया, ये हमारा डिफाइनिंग है. The buyers who were offered a cash rebate bought everything in no time. This is also non-defining, क्योंकि बायर्स के बारे में बात की गई है, कैश ऑफर किया गया, किसको किया गया है, ये हमें कुछ भी इन क्लियर नहीं है. इट वॉज योर ब्रदर दैट मेट माई सन. तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसके बारे में बात हो रही है ये सारा क्लियर किया गया है.
ये हमारा डिफाइनिंग है. ज्वाइन द टू सेंटेंसेज ऑफ ईच पेयर विद द हेल्प ऑफ अ रिलेटिव pronouns. हमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव pronouns. आई give you one example and rest of the part we will do in the written assignment. First one, the music was turned down, it was too loud. तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? The music which was too loud was turned down. Like that हम इसे चेंज कर सकते हैं हमारे relative pronouns के साथ. Hope you guys understand about the complete pronouns and types of pronouns, and please read carefully at your home. Stay safe. Thank you. Have a good day.